हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का लेसन सेकंड, जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप कारी। इस वीडियो में मैं आपको लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 1 द टीनी टीचर करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी करेंगे। The story of bringing up Kari takes us through the life of the narrator who has a baby elephant named Kari. The boy grows together with Kari and through this story narrates his experience. The story is a very sweet narrative that makes us grow fond of Kari. The relationship the narrator shares with the Kari is pure and sweet. Kari loves taking bath in the river and the author takes him for morning baths to the river. The friendship of Kari and the boy is endearing, to say the least. On one day, Kari pushes the narrator in the stream only to save another drowning boy. However, the narrator cannot swim and eventually Kari ends up saving them both. He also mischievously steals bananas and learns a lesson too. For this wrongdoing, Kari learns many other tricks as the narrator keeps teaching him along with the final master call. Kari the elephant was just 5 months old when the author got him. The pavilion is Kari's home and he keeps bumping into poles of thick tree stumps. One thing Kari enjoys a lot is his morning baths in the river, lying down in the water for a long time and squealing with pleasure. Kari enjoys the activity a lot. After his bath, Kari goes into a forest to get some twigs for his dinner, which takes quite a while. Then the narrator prepares dinner for Kari. Now they both have become great friends. However, on one day, Kari pushes the narrator into the stream. It it is to save a drowning boy from the author does not know how to swim. Thus, Kari has to eventually go in to save the both. The author catches Kari's trunk as he pulls both of them out and saves them. As Kari is so young, he is still a baby. He is also very notorious, so he gets checked whenever he is being mischievous. Over time, Kari develops a taste for bananas, so he begins stealing them. He puts his trunk through the window into the dining room and pulls out the bananas from the plate. Very cleverly, he takes them to his pavilion to eat in peace without getting caught. However, the narrator catches him stealing one day and gives him a scold. Kari learns his lesson and does not steal again. Over time, Kari learns a few lessons as he is a quick learner. He learns the command to sit and walk. However, the most difficult thing was master call. An elephant usually takes 5 years to learn it. However, it is the most important signal which an elephant must know. It helps in saving the master's life. When a master gets lost, they make a strange hissing sound, and the trained elephant will pull out the tree in front of which scares the other animals, including tigers, away. This way, he makes a path out of the forest, and Kari learned this trick as well.
The story of bringing up Kari is a gentle, sweet reminder of how animals are also our friends and they can even become more loving, brave, as well as sensible than humans in many situations. अब करते हैं हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, द enclosure in which Kari lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Kari's pavilion on page 8 in the textbook and say why it was built that way. कारी के बाड़े की छत घास फूस की बनी हुई थी जो वृक्षों के मोटे ठूंठों पर टिकी हुई थी। पुस्तक में दिए गए कारी के शरण गृह का अध्ययन करके बताइए कि यह किस प्रकार क्यों बनाया गया था। इसका आंसर है कारी enclosure was built that way to make it strong, otherwise it could fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. कारी का बाड़ा इस प्रकार इसलिए बनाया गया था ताकि मजबूत रहे, वरना इधर उधर घूमते हुए कारी स्तंभों से टकराकर इन्हें गिरा सकता था। क्वेश्चन 2, डिड कारी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या कारी नदी में अपने सुबह के स्नान का आनंद लेता था? अपने उत्तर के पक्ष में एक कारण दीजिए। इसका आंसर है यस, कारी डिड एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, कारी नदी में अपने सुबह के स्नान का अवश्य ही आनंद लेता था। वह लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था। क्वेश्चन 3, फाइंडिंग गुड ट्विंग्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम। वाई? कारी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता था, क्यों? इसका आंसर है द ऑथर हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट अ मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विंग्स। दिस प्रोसेस टुक अ लॉन्ग टाइम। लेखक को कोमल टहनियाँ प्राप्त करने के लिए अनेक वृक्षों पर चढ़ना पड़ता था। इस प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता था। क्वेश्चन 4, वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? कारी ने अपने मित्र को नदी में क्यों धकेला? इसका आंसर है द बॉय वॉज ड्रॉनिंग इनटू द स्ट्रीम। कारी वॉन्टेड हिज फ्रेंड टू सेव हिम, सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। इसका आंसर है एक लड़का नदी में डूब रहा था। कारी चाहता था कि उसका मित्र उसे बचाए, इसलिए उसने अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। क्वेश्चन 5, कारी वॉज लाइक अ बेबी। वट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? कारी एक बच्चे जैसा था, किन बिंदुओं द्वारा इसकी तुलना की गई है? इसका आंसर है कारी वॉज लाइक अ बेबी। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड। ही वॉज वेरी नॉटी। ही स्टोल बनानाज एंड ईट दैम अप like a child. He was taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. कारी एक बच्चे जैसा था, उसे अच्छा बनना सिखाया जाता था। वह बहुत ही शरारती था, वह केले चुराकर खा जाता था। बच्चे की भांति उसे भी सिखाया गया कि उसे कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीरे चलना है। क्वेश्चन 6, कारी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग हिम। हाउ डिड ही डू इट? कारी बिना किसी को पता चले घर में पड़े सभी केलों तक पहुंच जाता था। वह यह काम कैसे करता था? इसका आंसर है कारी वॉज वेरी क्लेवर। ही पुट हिज ट्रंक इनसाइड द हाउस थ्रू द विंडो, पिक्ड अप ऑल द बनानाज एंड डिसअपीयर। कारी बहुत ही चतुर था। वह खिड़की से अपनी सूंड घर के अंदर डाल देता था, सभी केले उठा लेता था और अदृश्य हो जाता था। क्वेश्चन 7, कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड वॉक। वट आर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड? कारी ने बैठने और चलने के आदेश सीख लिए। प्रत्येक आदेश के लिए क्या निर्देश थे? इसका आंसर है ऑन सेइंग धत एंड पुल्ड बाय द ईयर, कारी वुड सिट डाउन, बट व्हेन हिज फ्रेंड सेड माली एंड pulled his trunk forward, कारी would get up and walk. धत कहने पर तथा कान खींचने पर कारी नीचे बैठ जाता था, परंतु जब उसका मित्र माली कहता था और उसकी सूंड को आगे की ओर खींचता था तो कारी उठकर चलने लगता था। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मास्टर कॉल? व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? मास्टर कॉल क्या होती है?
हाथी के लिए इस संकेत को सीखना क्यों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग howling sound. It seems as if a snake or a tiger were fighting. You have to make that kind of sound in the elephant's ear. It is the most important signal for the elephant because it alerts the elephant that they are lost in the jungle. The elephant at once pulls down a tree after a tree and makes a safe road for you to come out of the jungle. मास्टर कॉल फुकारने तथा गरजने वाली एक विचित्र आवाज़ होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सांप तथा बाघ आपस में लड़ रहे हों। यह आवाज़ हाथी के कान में डालनी पड़ती है। हाथी के लिए यह संकेत इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाथी को इस बात के लिए सचेत करता है कि वे जंगल में भटक गए हैं। हाथी तुरंत एक के बाद एक पेड़ उखाड़ फेंकता है और तुम्हारे लिए जंगल से बाहर निकलने के लिए एक सुरक्षित मार्ग तैयार कर देता है। अब करते हैं हम इस चैप्टर के MCQ टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ ओल्ड वॉज कारी व्हेन ही वॉज गिवन टू राइटर फॉर कैरिंग? ऑप्शन ए 5 years old, ऑप्शन बी 5 month old, ऑप्शन सी 3 year old, ऑप्शन डी 3 month old। इसका आंसर है ऑप्शन डी 3 month old। क्वेश्चन 2, कारी लिव्ड इन अ डैश। ऑप्शन ए हट, ऑप्शन बी डैन, ऑप्शन सी केव, ऑप्शन डी पेविलियन। इसका आंसर है ऑप्शन डी पेविलियन। क्वेश्चन 3, ऑन हियरिंग द मास्टर कॉल द एलिफेंट पुल्ड डाउन द ट्री आफ्टर ट्री टू मेक डैश। ऑप्शन ए फ्यूल, ऑप्शन बी सेफ रोड, ऑप्शन सी फर्नीचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी सेफ रोड। क्वेश्चन 4, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज डैश। ऑप्शन ए द मास्टर कॉल, ऑप्शन बी धत, ऑप्शन सी माल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए द मास्टर कॉल। क्वेश्चन 5, हाउ ओल्ड वॉज द राइटर व्हेन ही स्टार्टेड केयरिंग फॉर कारी? ऑप्शन ए 10 years old, ऑप्शन बी 8 years old, ऑप्शन सी 9 years old, ऑप्शन डी 12 years old। इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 years old। क्वेश्चन 6, हाउ मच ट्विंग्स कारी एट इन वन डे? ऑप्शन ए 20 kg, ऑप्शन बी 20 pounds, ऑप्शन सी 40 pounds, ऑप्शन डी 40 kg। इसका आंसर है ऑप्शन सी 40 pounds। क्वेश्चन 7, what was the first thing Kari did? ऑप्शन ए save the life of a boy, ऑप्शन बी save an animal, ऑप्शन सी clean the house, ऑप्शन डी wash clothes। इसका आंसर है ऑप्शन ए save the life of a boy। क्वेश्चन 8, on coming out of the river Kari's skin shone like dash। ऑप्शन ए ebony, ऑप्शन डी बी गोल्ड, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी डायमंड। इसका आंसर है ऑप्शन ए एबोनी। क्वेश्चन 9, वेयर डिड द राइटर टेक केयर ऑफ कारी बाथ? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी पॉन्ड, ऑप्शन डी वेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी रिवर। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज कारीज फॉन्ड ऑफ? ऑप्शन ए लॉन्ग ग्रास लीव्स, ऑप्शन बी branches of cactus, ऑप्शन सी young branches of the banyan tree, ऑप्शन डी young branches of the mango tree। इसका आंसर है ऑप्शन सी young branches of the banyan tree। क्वेश्चन 11, where did the writer take Kari for morning bath? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी पॉन्ड, ऑप्शन डी वेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी रिवर। क्वेश्चन 12, every morning the keeper of Kari took him to the river for ऑप्शन ए a long walk, ऑप्शन बी bath, ऑप्शन सी carrying logo for wood, ऑप्शन डी uprooting stumps। इसका आंसर है ऑप्शन बी his bath। क्वेश्चन 13, where did the family used to keep bananas? ऑप्शन ए on the table in the dining room, ऑप्शन बी in the kitchen, ऑप्शन सी in lobby, ऑप्शन डी in drawing room। इसका आंसर है ऑप्शन ए इन टेबल इन द डाइनिंग रूम। क्वेश्चन 14,
What is the easiest way to lead an elephant? Option A, pull him by trunk. Option B, pull him by ear. Option C, pull him by tail. Option D, pull him by sticks. इसका आंसर है ऑप्शन बी, pull him by ear. Question 15. What did Kari see in the river? Option A, drowning animal. Option B, drowning boy. Option C, a lion. Option D, a crocodile. इसका आंसर है ऑप्शन बी, drowning boy. Question 16. The master call alert an elephant that they are dash. Option A, going to the river. Option B, lost in the jungle. Option C, lost in the city. Option D, none of these. इसका आंसर है ऑप्शन बी, lost in the jungle. Question 17. According to writer, who was stealing bananas? Option A, a snake. Option B, servants. Option C, parents. Option D, a dog. इसका आंसर है ऑप्शन ए, अ स्नेक. क्वेश्चन 18. हाउ टू टीच एन एलिफेंट? ऑप्शन ए, लाइक अ चाइल्ड. ऑप्शन बी, लाइक अ टीचर. ऑप्शन सी, लाइक फादर. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाइक अ चाइल्ड. तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है. अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी लेसन 3, गोलू ग्रोज अ नोज़. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.